Hello students, welcome to the third lecture of biomolecules. In this lecture, I'm going to discuss about complex sugar, the structure of complex sugar. If you remember in the last lecture, we have discussed about cyclic structure of glucose, fructose, and with respect to Fischer projection formula as well as with respect to Haworth projection formula. So now we are going to discuss about the structure of oligosaccharides and polysaccharides with respect to Haworth projection formula. Okay, so let's start the lecture with complex sugar. So if you remember, if you talk about complex sugar, it is divided into two parts, oligosaccharides and polysaccharides. What are oligosaccharides? Oligosaccharides are those which have 2 to 10 monosaccharides, which on hydrolysis gives 2 to 10 monosaccharides. So let's talk about oligosaccharides. And if you remember, polysaccharides are those which gives more than 10 monosaccharides on hydrolysis. So let's talk about oligosaccharide first. So oligosaccharides on hydrolysis gives 2 to 10 monosaccharides. Okay. Now let's talk about disaccharides in this. So if you talk about disaccharides, so disaccharides are those which gives on hydrolysis which gives 2 monosaccharides. So what is the general formula of disaccharides? If you remember from the previous explanation, general formula of disaccharides is C12H22O11. Okay, and what is the basic structure of disaccharides? So disaccharides is basically made up of two monosaccharides. दो monosaccharides को join करेंगे तो disaccharides बनता है, because disaccharides on hydrolysis gives two monosaccharides. So what is the basic structure of disaccharides? First हम लोग वो discuss कर लेंगे. After discussion we take examples to make you understand how disaccharides like sucrose and all undergoes formation. So let's talk about its basic structure. In case of structure of disaccharides is made up of two monosaccharides. So this is monosaccharide 1. Okay, this is monosaccharide 2. And the carbon atom of monosaccharide 1 and the carbon atom of monosaccharide 2 are attached to each other by COC linkage. This linkage is called as glycosidic linkage. Remember this. Okay, so two monosaccharides are attached to each other by a glycosidic linkage, that is COC linkage. Okay, now this sugar can be these disaccharides can be reducing sugar or it can be a non-reducing sugar. So how will you identify whether they are reducing sugar or a non-reducing sugar? तो उसके लिए भी आप लोगों को एक hint समझना बहुत जरूरी है, and that is you have to remember. First point is कि some disaccharides are reducing sugar and some are non-reducing sugar. Okay, so reducing or non-reducing में फर्क क्या होता है? Reducing sugars are those which can be reduced by Tollens reagent and non-reducing sugar are those which cannot be reduced by Tollens reagent, जो हम लोग ने aldehyde में test देखा था, the silver mirror test. Okay, so first thing you need to remember, okay, keep this in mind, okay, reducing sugar are those which can be reduced by Tollens reagent, that is silver mirror test, that is using ammonical silver nitrate as a solution. वो aldehyde को okay, तो वो रिड्यूसिंग शुगर हो गया. लेकिन जो टॉलरेंस टेस्ट नहीं देगा, टॉलरेंस को रिड्यूस नहीं करेगा, वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो गया. नाउ सेकेंड पॉइंट, रिमेंबर, तो फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा कि वी हैव रिड्यूसिंग शुगर, ओके, विच कैन रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट. That is silver mirror test. Okay, and we have non-reducing sugar, cannot reduce Tollens reagent.
एंड व्हाट इज टॉलरेंस रिएजेंट? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, जो हम लोगों ने अल्डिहाइड कीटोन्स में देखा था कि जब अल्डिहाइड रिएक्ट करता है टॉलरेंस रिएजेंट से तो अल्डिहाइड गेट ऑक्सीडाइज्ड टू अ salt, acidic salt, and Ag plus in tolerance reagent get reduced to Ag, so you have a silver appearance. That is why it is in a test tube, that is why it is called as a silver mirror test. तो ये दो टाइप के शुगर होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर होते हैं और नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं. ओके, नाउ सेकंड थिंग यू नीड टू रिमेंबर कि in case of reducing and non reducing sugar, if both the anomeric carbon atoms, if both anomeric carbon atom, see disaccharides are made up of two monosaccharides by COC linkage. So if this C and this C, the second, the two C's to form COC linkage, if they both are anomeric carbon atom, then they are called as non-reducing sugar. If both the anomeric carbon atom of two monosaccharides are involved in glycosidic linkage, then they are called as non-reducing sugar. Because वो anomeric carbon किससे बनता है? Anomeric carbon is the carbonyl carbon. अगर फ्रक्टोस में है तो वो सेकंड कार्बन है, सी डबल बॉन्ड हो. अगर ग्लूकोज है तो वो फर्स्ट कार्बन है, CHO. तो वो एनोमेरिक कार्बन अगर फ्री नहीं होगा और COC लिंकेज में इन्वॉल्व होगा दोनों मोनोसैकेराइड्स का, तो देन इट इज कॉल्ड एज नॉन रिड्यूसिंग शुगर. सो रिमेंबर कि इफ एनोमेरिक कार्बन एटम्स anomeric carbons of both monosaccharides are involved in COC linkage, that is glycosidic linkage, तो वो कौन सा शुगर हो जाएगा? नॉन रिड्यूसिंग शुगर. कीप दिस इन माइंड. बट इफ वन ऑफ द एरोमेरिक कार्बन इज फ्री, दो मोनोसैकेराइड में से किसी एक का भी फ्री रहा, किसी एक का फ्री रहा, सो देन इट इज कॉल्ड एज रिड्यूसिंग शुगर, बिकॉज वो फ्री एरोमेरिक कार्बन जो है वो टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर पाएगा. सिंपल है. एंड इफ वन ऑफ द anomeric carbon in both monosaccharides is free, मतलब not involved in glycosidic linkage, then that sugar will be called as reducing sugar. So keep this in mind. If both the anomeric carbons are involved in bond formation, then it is called as non-reducing sugar. और अगर दोनों मोनोसैकेराइड में से किसी एक का एनोमेरिक इन्वॉल्व है और दूसरे का नहीं है, दूसरे का फ्री है, then it is called as reducing sugar. And most important point, remember, नेम से भी आप पता कर सकते हैं. रिमेंबर, अगर नॉन रिड्यूसिंग शुगर है तो उसका नेम ends with usai. Okay, and if it is a reducing sugar, the name ends with os. Remember this. So अब मैं आगे बढ़ता हूँ. Like disaccharides are those which are made up of how many monosaccharides? Two monosaccharides. They are attached to each other by COC linkage. That is called as a glycosidic linkage. If both the carbon atoms are involved in the bond formation of glycosidic linkage, then it is a non-reducing sugar which can reduce tolerance reagent. अगर कोई एक भी free रहा तो वो reducing sugar होगा. Non-reducing sugar name ends with oside. Reducing sugar name ends with os. Okay, so I'll clear this up. और अब structures की तरफ move करते हैं. Let's take an example of few disaccharides. Let's talk about the first disaccharide, very simple disaccharide, that is sucrose. The naturally occurring sucrose is D+. तो dextro होता है sucrose, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग. Okay, the other name for sucrose, if you remember, the other name for sucrose can be cane sugar or table sugar, बोल सकते हैं sucrose. Okay, अब sucrose का main structure क्या है? So remember, in sucrose, C1, first carbon atom, C1 of alpha D glucopyranose, okay, is attached to, किससे attached होगा? Is attached to C2 of beta D fructofuranose.
मतलब ग्लूकोज और फ्रक्टोज के दो मॉलिक्यूल लेने, ग्लूकोज का अल्फा डी लेना है, फ्रक्टोज का बीटा डी लेना है। ओके, और हम लोगों ने ये बना चुके हैं पहले स्ट्रक्चर, तो चलो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं। इफ यू रिमेंबर, ग्लूकोज इज pyranose मेड अप ऑफ 6 मेंबर, 5 कार्बन 1 ऑक्सीजन। तो देखो ये ऑक्सीजन हो गया ग्लूकोज का, तो दिस इज ग्लूकोज का अल्फा डी, फर्स्ट कार्बन एटम विच इज एनोमेरिक कार्बन एटम, सेकेंड कार्बन एटम, थर्ड कार्बन एटम, फोर्थ कार्बन एटम, फिफ्थ कार्बन एटम विच इज अटैच्ड टू ऑक्सीजन। ओके, अब आपको याद होगा यहाँ पर फर्स्ट कार्बन एटम पे अगर मैं अल्फा की बात कर रहा हूँ तो OH अल्फा डी, तो डी सीरीज में अल्फा में OH कम्स डाउनवर्ड, सो OH इज हियर, H इज हियर। ओके, देन ओपन स्ट्रक्चर में ग्लूकोज के OH कम्स एट राइट, सेकंड पोजीशन पे OH कम्स एट राइट हैंड साइड, सो इट इज प्लेस्ड डाउनवर्ड, H कम्स हियर। थर्ड पोजीशन पे OH लेफ्ट पे आता है तो इट इज प्लेस्ड अपवर्ड, H इज हियर। Okay, so this is third position, second position. At fourth position, if you remember, again OH left right पे आता है तो downward, H upward. And fifth position, if you remember, is common with H downward and CH2OH upward. So this is alpha D glucopyranose. Okay, alpha D glucopyranose हमने बना लिया, तो फर्स्ट मॉलिक्यूल हमने बना लिया। अब सेकेंड हमको क्या बनाना है, बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोस। इफ यू रिमेंबर, फ्रक्टोस इज 5 मेंबर रिंग जिसमें 4 कार्बन है। Okay, and the anomeric carbon is the second carbon atom और उसका बीटा फॉर्म चाहिए, सो बीटा डी सीरीज, बीटा डी सीरीज में द एनोमेरिक कार्बन, द सेकंड कार्बन एटम पे OH is placed upward and CH2OH which is the first carbon placed downward. If you remember, the second carbon is the anomeric carbon, then third carbon is similar to glucose, OH, fourth carbon is similar to glucose, HOH, and of course the fifth carbon is also similar to glucose, HN, CH2OH. Fifth carbon, sixth carbon. So now this is alpha D glucopyranose and second molecule is beta D fructofuranose. Both are attached to each other by C1C2 linkage. So this is the C1 which is anomeric. This is C2 which is anomeric in fructose. अब क्या होगा, देखो यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकाल देना, H2O, देखो ये निकल गया H2, and once the H2O, sorry, यहाँ से H2O निकाल देना, see, and once the H2O is removed, this oxygen will go and attach itself to the carbon atom of C1. Okay, तो देखो अब मैं यहाँ से H2O निकाल देता हूँ, I remove this H2O, OH from here, H from here, and this oxygen is going and attach itself, oxygen goes and attach itself to the C1 carbon. तो ये बन गया कौन सा लिंकेज, COC ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, लेकिन कौन सा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, C1C2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ओके, एंड इफ यू सी प्रॉपर्ली, इन केस ऑफ सुक्रोस, ग्लूकोज का अल्फा डी ग्लूकोपायरानोस का जो एनोमेरिक कार्बन है एंड बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानस का जो एनोमेरिक कार्बन है, बोथ आर इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन, तो दैट इज व्हाई ये एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो गया। तो सुक्रोस के लिए हम लोग लिख सकते हैं गाइस, सुक्रोस इज non-reducing sugar, remember, and the name should ends with what, oocyte. इसके लिए इसका नाम क्या हो सकता है, if the IUPAC name, if I write down its IUPAC name, इसका नाम हो सकता है अल्फा डी, सी द नेम प्रॉपरली, ग्लूकोपायरानोसिल, ओके, बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोसाइड, देखो साइड से एंड हुआ, और दूसरा नाम आप फ्रक्टोज के फॉर्म में कर सकते हो, दैट ग्लूकोज के फॉर्म में, बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोसिल अल्फा डी ग्लूकोपायरानोसाइड, oocyte, देखो name ends with oocyte. So this is the IUPAC name of glucose, sucrose, and sucrose is a perfectly non-reducing sugar, but sucrose का naturally occurring state क्या है, dextrorotatory है, you have to remember this, कि it is dextrorotatory in nature, मतलब जो naturally occurring sucrose रहता है वो dextrorotatory होता है। Okay, now I'll tell you something more important point, one more important point regarding the sucrose, keep this in mind for the
theoretical question as well as for the MCQ, keep this in mind that inversion of cane sugar का एक आंसर होता है या inversion of sucrose होता है. So what is this? See, when you take sucrose, you add this to water, undergoes hydrolysis, sucrose will break down in presence of an acid. It results into the formation of two things, glucose and fructose. दो चीज बनाता है, glucose and fructose. Now, sucrose naturally occurring क्या है? Naturally occurring वो क्या है? Dextro है. But when it undergoes hydrolysis in water, it gives glucose and fructose. और glucose जो बनेगा वो D plus glucose बनेगा. See, this is a D plus glucose. And fructose जो बनेगा, glucose जो बनेगा, that is D plus. और fructose जो बनेगा, that is D minus. क्योंकि naturally occurring glucose dextrorotatory है, naturally occurring fructose levorotatory है. Okay, so glucose का जो rotation होगा, that will be plus 52.5 डिग्री, और जो फ्रक्टोज का रोटेशन होगा दैट इज माइनस. ओके, वो माइनस में आ रहा है, सो माइनस 92.4 डिग्री. सो फ्रक्टोज विल रोटेट द प्लेन पोलराइज राइट टू अ ग्रेटर एक्सटेंट एज कंपेयर टू ग्लूकोज, एंड वो भी उसका ऑपोजिट साइड माइनस. इसके लिए जो नेट सोल्यूशन होगा, देयरफॉर जो नेट सोल्यूशन होगा किसका? सुक्रोज का, वो बन जाएगा लेवो रोटेटरी. दैट इज कॉल्ड एज इन्वर्जन ऑफ केन शुगर. कि आपने सुक्रोस लिया था वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, बट व्हेन इट अंडरगोस हाइड्रोलिसिस टू गिव्स ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, जो नेट सोल्यूशन बनेगा ड्यू टू द हाई नेगेटिव रोटेशन ऑफ फ्रक्टोज, द नेट रोटेशन becomes levorotatory. So आपने लिया था dextro, but hydrolysis के बाद वो हो गया levo. So that is called as inversion of cane sugar. Remember this point, right? What is inversion of cane sugar? So cane sugar, naturally occurring cane sugar is a dextrorotatory substance, but when it is added to water and for after addition of acid, it undergoes hydrolysis to give glucose and fructose. Glucose shows plus 52.5 degree का rotation, and fructose shows minus 92.4 degree rotation. Therefore, the net rotation appears to be levo. Therefore, sucrose आपने लिया था dextro, but net solution levo निकला. That is called as what? Inversion of cane sugar. So this is all about sucrose, non-reducing sugar. अभी हम लोग next molecule पे जाते हैं, second molecule. So the second molecule is maltose. Maltose is also called as malt sugar. Okay. It is obtained by the hydrolysis of starch by the enzyme diastase present in malt. आपको याद रखना पड़ेगा. Okay, just basic idea. That is sprout, barley, seeds. वहां से ये malt sugar निकलता है. ठीक है. It is obtained by hydrolysis of starch by enzyme diastase. Okay, present in malt. That is sprout, barley, seeds, etc. ओके, वहां से मिलता है हमको ये माल्टोस. अब माल्टोस का स्ट्रक्चर क्या? लेट्स फोकस ऑन द स्ट्रक्चर. आपको स्ट्रक्चर के बारे में पूछेगा ज्यादा. स्ट्रक्चर क्या है? सो इन माल्टोस यू हैव टू रिमेंबर इफ आई टॉक अबाउट स्ट्रक्चर, तो देन C1 याद रखना, C1 ऑफ अल्फा डी, देखो यहां पर भी अल्फा डी यूज हो रहा है, ग्लूको पायरानोस, मतलब ग्लूकोज चाहिए, उसका अल्फा फॉर्म चाहिए और डी सीरीज का चाहिए. ओके, इज लिंक्ड टू C4, C1 नहीं, C4 ऑफ अनदर अल्फा डी ग्लूको पायरानोस. मतलब ये समझना बहुत जरूरी है कि ये बनता ही
एंड में किससे है, इट इज मेड अप ऑफ 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, वो भी दोनों ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या होने चाहिए, दोनों ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो अल्फा डी सीरीज के होना चाहिए, तो ये उसी से ही बनता है, और दोनों का C1 C4 लिंकेज अटैच्ड होता है एक दूसरे से। ओके, so C1 of alpha D glucopyranose is linked to C4 of another alpha D glucopyranose, so you require 2 glucopyranose basically। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, C1 ले रहा हूँ अल्फा डी ग्लूकोपायरानोस और C4 ले रहा हूँ अल्फा डी ग्लूकोपायरानोस, और दोनों को एक दूसरे से अटैच कर रहा हूँ। सो बहुत सिंपल है, देखो यहाँ पर मैं बना दूंगा अगेन अल्फा डी ग्लूकोपायरानोस का स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन हो गया सी, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, अगेन आप वही करेंगे, अल्फा डी चाहिए तो यहाँ पर आएगा H, यहाँ पर आ जाएगा OH, हियर आल्सो इट विल बी H, OH, OH, H, okay, here it will be what, H, fourth carbon, OH, fifth carbon obviously it will be HN CH2OH, तो ये फर्स्ट कार्बन हो गया। अब मैं ऐसी एक सेम मॉलिक्यूल यहाँ बना रहा हूँ क्योंकि दोनों सेम मॉलिक्यूल से ही बना है, ये ऑक्सीजन हो गया, दिस इज C1, दिस इज C1, 2, 3, 4, 5 एंड अटैच कर दिया, देखो यहाँ पर भी वही बनाएंगे, H, OH, H, second carbon, OH, third carbon is what, OH, H, fourth carbon is what, H, OH, देखो ये fourth carbon है, and this is HNCH2OH, fifth and sixth carbon। अब ये दोनों अल्फा डी ग्लूकोपायरानोस के मॉलिक्यूल है, इसका C1 C4 में से हमको क्या निकाल देना है, H2O निकाल देना है, तो चलो H2O निकाल देंगे, लेट्स रिमूव दिस H2O, तो एक ऑक्सीजन बच गया है, वो ऑक्सीजन को हम लोग सीधा अटैच कर देंगे C1 C4 लिंकेज, प्लस दिस इज वन ऑफ, सी यहाँ पर एक एनोमेरिक कार्बन C1 का जो इन्वॉल्व है बॉन्ड फॉर्मेशन में, बस दिस एनोमेरिक कार्बन इज फ्री, सो दैट इज व्हाई अगर एनोमेरिक कार्बन फ्री हो किसी एक का भी तो उसको हम लोग रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं, तो डेफिनेटली इट इज अ रिड्यूसिंग शुगर, मतलब सुक्रोज को छोड़ के बाकी सब रिड्यूसिंग शुगर ही है। अच्छा, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, व्हाट इज IUPAC नेम, रिमेंबर the IUPAC name will be 4O, at fourth position there is oxygen, ठीक है, और ऑक्सीजन के साथ में क्या अटैच है, अल्फा डी ग्लूकोपायरानोसिल, ओके, बचता क्या है, अल्फा डी ग्लूकोपायरानोस, देखो ओ से एंड किया, तो ये आपका पेरेंट हो गया, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो सब्स्टिट्यूएंट मैंने क्या लिखा, 4O सब्स्टिट्यूएंट एंड देन अ पेरेंट। ओके, सो दिस इज द नेम ऑफ माल्ट शुगर, अ रिड्यूसिंग शुगर। चलो अभी फोर्थ एग्जांपल लेते हैं, थर्ड एग्जांपल लेते हैं, आई विल क्लियर दिस अप। थर्ड एग्जांपल इज सेलोबायोस। नाउ सेलोबायोस कहां से मिलता है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ सेल्यूलोस, तो सेलोबायोस इज ऑब्टेन्ड बाय hydrolysis of cellulose, cotton plant से, ओके। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर। So in the structure you have to remember C1 of beta D, देखो D सीरीज का बीटा फॉर्म चाहिए, बीटा D glucopyranose is attached to, is linked to C4 of another same molecule, another beta D glucopyranose, मतलब ये ग्लूकोपायरानोस से ही बन रहे दोनों, दिस सेलोबायोस इज मेड अप ऑफ 2 ग्लूकोपायरानोस, बट इनमें बीटा डी फॉर्म चाहिए, ओके। सो अब इसका बीटा फॉर्म बना दे डी सीरीज का, कोई बात नहीं, बीटा फॉर्म में एनोमेरिक कार्बन में OH इज प्लेस अपवर्ड, सो देखो मैंने यहाँ पर पहला फॉर्म बना दिया, बराबर देखना, दिस इज ऑक्सीजन एटम, दिस इज C1 ग्लूकोज का। अच्छा, OH ऊपर लिखूंगा क्योंकि बीटा डी फॉर्म बनाना है सर, यस C1, सेकेंड तो वैसे ही रहेगा नॉर्मल, थर्ड में OH ऊपर आता है, आपको पता होगा क्योंकि OH लेफ्ट पे आता है, फोर्थ OH नीचे आएगा, फोर्थ,
फिफ्थ इज सेम HNCH2OH। अब सेम मॉलिक्यूल में यहाँ बना दो, बराबर देखना। ऑक्सीजन, second carbon, third carbon, fourth carbon, fifth carbon and attached to oxygen. So अभी बीटा फॉर्म है OHH, first carbon anomeric carbon, second HOH, third is OHH, fourth is what, HOH, fifth is HNCH2OH। तो बराबर देखो C4 और C1 में से वाटर निकाल देंगे। चलो तो ये वाटर यहाँ से निकल गया, सो लेट्स रिमूव इट। चलो निकाल दो, ओके निकाल दिया। बचा क्या, ऑक्सीजन, ठीक है ऑक्सीजन बच रहा है। ये ऑक्सीजन को हम लोग अटैच कर देते हैं C1 से, देखो C1 से मैंने अटैच कर दिया, तो अब ये आपका बन गया C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। C1C4 बन गया ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, यस C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अच्छा, नाउ वन ऑफ द एनोमेरिक कार्बन, सी एनोमेरिक कार्बन इज फ्री, वन ऑफ द एनोमेरिक कार्बन इज फ्री, देयरफॉर डेफिनेटली ये भी कौन सा शुगर हो गया, रिड्यूसिंग शुगर। आपको मैंने बताया था कि सुक्रोस इज नॉन रिड्यूसिंग, बाकी सब रिड्यूसिंग कैटेगरी में आ जाएंगे। ओके, नाउ अगर मुझे इसका IUPAC नेम लिखना है तो सेम मैं क्या करूंगा, इसके अंदर 4 ऑक्सीजन ब्रैकेट, ये कौन सा फॉर्म है, ये कौन सा फॉर्म है, ये बीटा डी फॉर्म है। ओके, सो बीटा डी ग्लूको पायरानोसिल, बचा क्या, बीटा डी ग्लूको पायरानोस, ओस से क्यों एंड हो रहा है, बिकॉज इट इज अ रिड्यूसिंग शुगर। सिंपल, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, सेलोबायोस, रिमेंबर दिस। ओके, सो स्ट्रक्चर हो गया सेलोबायोस का हम लोग ने। अब उसके बाद में लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ मॉलिक्यूल। द फोर्थ मॉलिक्यूल हम लोग देखेंगे, द फोर्थ मॉलिक्यूल इज लैक्टोस, मिल्क शुगर। नाउ लैक्टोस का स्ट्रक्चर क्या है, इन लैक्टोस देखो ध्यान देना, C1 ऑफ बीटा डी गैलेक्टोपायरानोस, देखो यहां पर गैलेक्टोपायरानोस आ रहा है, is linked to C4 of beta D ग्लूकोपायरानोस। मतलब गैलेक्टोस और ग्लूकोस का कॉम्बिनेशन। आपको याद है ग्लूकोस एंड गैलेक्टोस ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, लेकिन ग्लूकोस पे ओपन स्ट्रक्चर में द OH ऑन द थर्ड कार्बन एटम इज लेफ्ट हैंड साइड, गैलेक्टोस में थर्ड और फोर्थ दोनों पे OH लेफ्ट हैंड साइड रहता है। ठीक है, तो C1C4 लिंकेज है, तो पहले मैं ग्लूकोपायरानोस बना देता हूं इधर पे एज इट इज। देखो ये O, फोर्थ फिफ्थ अटैच कर दो। चलो बीटा डी फॉर्म बनाना है, बना देंगे OHH, फर्स्ट कार्बन एटम, सेकेंड कार्बन इज अगेन HOH, थर्ड कार्बन इज OHH, फोर्थ कार्बन इज व्हाट, HNOH, एंड फिफ्थ कार्बन इज HNCH2OH। ओके, ये बन गया मेरा ग्लूकोपायरानोस। अब गैलेक्टोपायरानोस में यहां बनाता हूं, देखो बराबर देखना, सेम रहेगा ग्लूकोज जैसा, फर्स्ट कार्बन एटम, सेकेंड कार्बन एटम, थर्ड कार्बन एटम, फोर्थ कार्बन एटम, फिफ्थ कार्बन एटम अटैच कर दिया। अब बीटा सीरीज बनाना गैलेक्टोपायरानोस का, OH ऊपर आ जाएगा, H नीचे आ जाएगा। सेकेंड कार्बन इज सेम HOH, बट थर्ड एंड फोर्थ कार्बन पे ओपन स्ट्रक्चर में गैलेक्टोस के मैंने बताया था OH लेफ्ट पे होता है, तो जो लेफ्ट पे होगा इट इज प्लेस अपवर्ड। सो देखो यहाँ पर भी OH ऊपर आएगा, H, यहां पर भी OH ऊपर आएगा, H। फिफ्थ कार्बन देखो, फोर्थ एंड थर्ड कार्बन इससे कंपेयर करो, देखो फोर्थ में ही डिफरेंस आता है, गैलेक्टोस में OH ऊपर आता है, तो दिस इज योर गैलेक्टोस जो मैंने नीचे बनाया, HNCH2OH। सो नाउ C1 of galactopyranose and C4 of glucopyranose, यहां से क्या निकाल दूं मैं, H2O। चलो H2O निकाल देते हैं, वी रिमूव दिस H2O हियर, एक ऑक्सीजन बच जाएगा, तो इससे इन दोनों को अटैच कर देंगे, तो ये बन गया glycosidic linkage, and in this lactose molecule if you see, जो बीटा डी फॉर्म है ग्लूकोस मॉलिक्यूल का, उसका एनोमेरिक कार्बन इज फ्री
अगर एनोमेरिक कार्बन फ्री है तो डेफिनेटली लैक्टोज भी एक रिड्यूसिंग शुगर हो गया। एंड व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड? सो ये आपका ग्लूकोज आपका पेरेंट हो गया, सो 4O, गैलेक्टोज इज सब्स्टिट्यूएंट, सो 4O गैलेक्टो पायरानोसिल। ठीक है, बच रहा क्या है, मतलब बीटा डी फॉर्म, बच रहा क्या है, बीटा डी ग्लूको पायरानोस। ओके, सो दिस इज अबाउट लैक्टोज मिल्क शुगर। याद रखना ये जो सेकेंड स्ट्रक्चर है गैलेक्टोपायरानोस का, फर्स्ट स्ट्रक्चर जो बना है ग्लूकोपायरानोस का। ओके, आई विल क्लियर दिस अप। After the discussion of disaccharides in oligosaccharides, let's talk about the second complex sugar, which we know as polysaccharides. So what are polysaccharides? Polysaccharides are those molecules which on hydrolysis give large number of monosaccharides. Okay, so it's a chain, it's a polymer, large chain of monosaccharides attached to each other to form one molecule of polysaccharides. इसमें सबसे पहला मॉलिक्यूल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टार्च। Now starch is also called as amylin. Okay, molecular formula of starch is C6H10O5N. Now this N can range from 200 to 1000. It varies from source to source. Okay, it varies from source to source. इसका occurrence का होगा, तो it is basically found in starches, found mainly, okay, in where? In seeds, plus roots, tubers, okay, of plant, then wheat, maize, rice, potatoes, barley, यहाँ से मिलता है हम लोग को, बार्ली से भी मिलेगा ये, बनानास, ओके, एंड sorghum, different types of this starch food जिससे हम लोग को ये अवेलेबल है। ओके, स्टार्च बेसिकली एक लॉन्ग चेन पॉलीमर है ग्लूकोज का, n मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज अटैच हो गए, वो N200 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है। ओके, नाउ यू हैव टू रिमेंबर कि बेसिकली स्टार्च एक टाइप का नॉन रिड्यूसिंग शुगर के, इसमें एरोमेटिक कार्बन सारे इन्वॉल्व रहते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। दूसरी बात यह है कि ऑन हाइड्रोलाइसिस विद डाइल्यूट एसिड, स्टार्च को जब आप हाइड्रोलाइसिस में डालते हो, जब वो हाइड्रोलाइसिस में जाता है, मतलब ब्रेक करते हो यूजिंग वाटर, so basically in presence of dilute acid or an enzyme, it breaks to form a small maltase. Okay, तो ये आपको माल्ट शुगर बना के देता है। फिर उसको फर्दर ब्रेक करते जाओगे तो आपको मिलेगा ग्लूकोज, तो बेसिकली ग्लूकोज की चेन में कन्वर्ट हो जाता है, तो लार्ज चेंज ऑफ ग्लूकोज। और अगर मैं स्टार्च का कंपोजिशन का बात करूं, वेरी इंपॉर्टेंट, जो स्ट्रक्चर में हमको काम आएगा, रिमेंबर दिस, कंपोजिशन ऑफ स्टार्च। तो starch is a mixture, remember that is a mixture of two components, दो components का ये mixture होता है। ओके, जिसमें से पहला component जो होता है वो first component is the water soluble amylose, जो सिर्फ 15 से 20% होता है, और दूसरा होता है water insoluble amylopectin, जो 80 से 85% होता है। ओके, सो मतलब दो टाइप, स्टार्च को पढ़ना है तो यू हैव टू रिमेंबर इट इज मेड अप ऑफ अमाइलोस एंड अमाइलोपेक्टिन, देयरफॉर इसको अमाइलम बोलते हैं, अमाइलोस एंड अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोस इज वाटर सॉल्युबल 15 to 20% एंड अमाइलोपेक्टिन इज वाटर इनसॉल्युबल 80 to 85%। तो हमको मेन इसके कंपोजिशन यानी इसके स्ट्रक्चर पे फोकस करना है। ओके, सो लेट्स फोकस ऑन दिस स्ट्रक्चर। सो अगर मैं यहाँ पर स्टार्च का स्ट्रक्चर की बात करूं,
तो पहला स्ट्रक्चर हम लोग किसका डिस्कस कर सकते हैं? पहला स्ट्रक्चर डिस्कस सकते हैं हम लोग अमाइलोस का, 15 to 20%। अमाइलोस क्या है? इट्स अ लीनियर पॉलीमर, स्ट्रेट चेन पॉलीमर है। इट्स अ लीनियर पॉलीमर which is made up of alpha D ग्लूकोपायरानोस। ओके, और वो भी कौन सा लिंकेज होगा इनके अंदर? C1O C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ओके, C1O C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, मतलब C1C4 से COC लिंकेज होगा। जैसे अब मैं एक अमाइलोस के लिए किससे बन रहा है? अल्फा डी फॉर्म। तो देखो ये मैं एक अल्फा डी फॉर्म बना देता हूँ फटाफट। दिस इज वन ऑफ द अल्फा डी फॉर्म। तो बनाते बनाते हैबिट हो जाना चाहिए। ये हो गया अल्फा फॉर्म, H OH डाउनवर्ड होगा, सेकेंड कार्बन पे H OH, थर्ड कार्बन इज OH H, फोर्थ कार्बन इज व्हाट? OH H, फिफ्थ कार्बन आपको याद होगा HNCH2OH। ये अल्फा एक स्ट्रक्चर हो गया। अब मैंने यहाँ पर दूसरा स्ट्रक्चर बनाया, देखो इसका। दिस इज द सेकेंड स्ट्रक्चर, H OH H OH OH H, third carbon, fourth carbon H OH, fifth carbon HNCH2OH। फिर एक और एक स्ट्रक्चर बनाया यहाँ पर, सपोज दिस इज H OH, ठीक है, H OH OH H H OH NHNCH2OH। तो ये लॉन्ग चेन बनता जा रहा। अब क्या होगा? व्हाट यू नीड टू डू? यू नीड टू रिमूव दिस H2O, और ये जो O है इसको यहाँ पर ज्वाइन कर देना है। तो देखो ये हो गया COC लिंकेज, C1C4। फिर यहाँ से भी वही करेंगे हम लोग, C वी विल रिमूव H2O, ये ऑक्सीजन जो होगा वो यहाँ आके ऐड हो जाएगा, अगेन C प्रॉपर्ली, दिस इज अगेन C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ऑब्वियस बात है सर, यहाँ से भी एक लिंकेज बनेगा, ऑक्सीजन चेन एक्सटेंशन। फिर यहाँ से भी एक लिंकेज बनेगा C4 से, ओके, ऑक्सीजन चेन एक्सटेंशन। तो C4 C1, so you have C1 C4 C1 C4 C4, large number it is getting arranged। so ये आपको बताना एग्जाम के अंदर कि C1 C4 C1 C4 का अरेंजमेंट होगा, तो ये बन जाएगा अमाइलोस, लीनियर पॉलीमर हो गया, जो सिर्फ 20%, 15 to 20% होता है। सो दिस इज अ चेन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोपायरानोस। अमाइलोस के अंदर चेन होता है अल्फा डी ग्लूकोपायरानोस का। अब दूसरा स्ट्रक्चर जो होता है वो अमाइलोपेक्टिन होता है। नो, अमाइलोपेक्टिन ब्रांच है, मतलब इसमें लीनियर भी है और ब्रांच भी है। तो दो टाइप के लिंकेज मिलेंगे, C1 C4, मतलब इट हैज अ लिंकेज, मतलब यहाँ पर आपको मिलेगा लीनियर में, लीनियर चेन ऑफ अगेन अल्फा डी ग्लूकोपायरानोस, जिनका अटैच क्या होगा? C1 C4, और दूसरा ब्रांच भी मिलेगा, मतलब दो चेन आपस में ज्वाइन हो जाएगी। तो ब्रांच चेन ऑफ ब्रांच चेन जिसमें आपको लिंकेज मिलेगा C1 C6 का, ठीक है। तो बराबर देखना, देखो मैं एक लीनियर चेन बना रहा हूं, देखो ये अल्फा डी ग्लूकोपायरानोस हो गया, दिस इज अनदर अल्फा डी ग्लूकोपायरानोस, C, दिस इज द C1 H OH, अल्फा है तो OH नीचे आएगा, H OH, थर्ड कार्बन OH H, fourth carbon is HNOH, and fifth carbon is HNCH2OH। again your first carbon H OH, second carbon, ये fourth carbon है, second carbon is what? H OH, third carbon is what? OH H, fourth carbon is OH H, and fifth carbon is HNCH2OH। तो पहले एक लीनियर चेंज बना रहा हूं, ओके, दिस इज अल्फा डी ग्लूकोपायरानोस का C1 C4। तो देखो H2O निकाल दिया, ये ऑक्सीजन यहाँ के अटैच हो जाएगा। अब बोलेंगे सर C1 C4 का लिंकेज बन गया, सिमिलरली यहां से भी आप एक ऑक्सीजन
आगे चेन में अटैच होता जाएगा C1 C4 से, तो यहाँ से चेन एक्सटेंशन हो रहा है। अगेन फ्रॉम दिस साइड देयर विल बी C1 C4 का चेन अटैच हो जाएगा C, ये चेन एक्सटेंशन हो गया। तो दिस इज द लीनियर चेन। तो ये जो चेन है दिस इज द लीनियर चेन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोपायरानोस। ओके, अब अभी अगेन अगेन एक लीनियर चेन में नीचे बना रहा हूं, सेम ऐसी एक लीनियर चेन में नीचे बना रहा हूं। तो सी प्रॉपर्ली हाउ आई एम मेकिंग अ चेन, ऑक्सीजन हियर, सी फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पे क्या है HN CH2OH। अब इमेजिन करो कि ये चेन एक्सटेंशन यहां से नहीं हुआ है, यहां पर ऑलरेडी एक OH ग्रुप है। ओके, नाउ ये भी अल्फा डी है, तो HOH OH OH H on the third carbon, OH H on the fourth carbon atom. Okay, now again I am making your C. This is the first carbon atom HOH, second carbon atom is HOH, third carbon atom is OH H, fourth carbon atom is HNOH. So now what I am doing here, C properly, देखो मैं ये निकाल के COC लिंकेज बना दिया चेन का। अब यहाँ पर देखो ये एक लीनियर चेन है जो एक्सटेंड हो रही है यहाँ से, सो सी इट इज एक्सटेंडिंग योर, ये भी अटैच होगा किसी C1 C4 को। अगेन ये जो C4 कार्बन एटम है योर, यहाँ से एक ऑक्सीजन अटैच होगा, किसको अटैच होगा, C1 ऑफ द अनदर मॉलिक्यूल। सो दो लीनियर चेन Now, these two linear chain are attached to each other by C1 C6। कैसे, देखो ये 6 कार्बन एटम है, फोकस ऑन दिस, यहाँ पर OH ग्रुप है, ये इस लीनियर चेन का OH है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से H2O निकाल देंगे, ये ऑक्सीजन तो है ही पहले से, वी आर रिमूविंग H2O फ्रॉम योर। सो व्हेन यू रिमूव H2O फ्रॉम योर, सी प्रॉपर्ली मैं यहाँ से H2O निकाल देता हूँ। तो ये जो ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन था इधर पे, वो इधर आके इससे अटैच हो जाएगा C। तो ये कौन सा लिंकेज हो गया, C1 C6 ब्रांच्ड लिंकेज। और ये सब कौन से लिंकेज है, C1 C4 लीनियर लिंकेज। तो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अमाइलोपेक्टिन, जो ब्रांच के फॉर्म में भी जा रहा है और लीनियर भी आ रहा है। ओके, सो अमाइलोपेक्टिन जो है वो ब्रांच पॉलीमर है ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोपायरानोस का, बट अमाइलोस है वो लीनियर पॉलीमर है। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टार्च, ये दोनों को मिक्स करोगे तो स्टार्च बन जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट मॉलिक्यूल। द सेकेंड मॉलिक्यूल इज after starch, the second molecule is cellulose. Again cellulose has a molecular formula of C6H10O5 N, ठीक है, जिसमें N मॉलिक्यूल जो है वो 300 से 3000 डिपेंडिंग अपॉन सोर्स। अच्छा, मेन प्लांट से मिलेगा ये कॉटन, कॉटन हो गया, वुड है, जूट है, एक्सेट्रा, ये सबसे हमको मिलेगा। बेसिकली अगर देखा जाए तो वुड के अंदर जो है ना वो 45 to 50% सेलुलोस मिलेगा, लेकिन अगर हम लोग कॉटन ले लेंगे तो कॉटन में 90 to 95% सेलुलोस मिलता है। ओके, और ये भी एक टाइप का नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। स्ट्रक्चर में आपको बना के नहीं बताऊंगा, बट उसका हिंट दे दूंगा, आप आराम से बना सकते हैं। इट इज वेरी सिंपल, सिर्फ वही ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना है और कुछ है नहीं इसके अंदर ज्यादा। एंड ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम ऑब्वियसली सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकता बिकॉज यू डोंट हैव दिस एंजाइम सेल्यूलेस इन इट। ओके, नाउ अगर मैं इसकी बात करूं स्ट्रक्चर की, तो इट इज अ फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर पॉलीमर। किसका लीनियर पॉलीमर है, you have to remember it is a linear polymer chain, long chain polymer, जिसके अंदर C1 C4 बीटा डी ग्लूको पायरानोस। ओके, तो बीटा डी ग्लूको पायरानोस मतलब ग्लूको पायरानोस की चेन होगी, लॉन्ग चेन, उसका C1 C4 का ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से वो अटैच होता है। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, बीटा डी बीटा डी बीटा डी बीटा डी के फॉर्म बनाने पड़ेंगे और C1 C4 C1 C4 C1 C4 C1 C4 अटैच करना पड़ेगा, दैट्स इट। और आपको पता है कि बीटा के अंदर क्या होता है, OH ग्रुप अपवर्ड प्लेस होता है,
ओके तो OH ग्रुप अपवर्ड प्लेस होगा और फोर्थ पोजीशन पे OH डाउनवर्ड होगा, तो C1C4 लिंकेज बनाना है, दैट्स इट। सो बीटा डी ग्लूकोपाइरानोस का C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा। एंड थर्ड पॉलीसेकेराइड जिसके बारे में मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूं, वो है ग्लाइकोजन। अगेन ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी C6H10O5N। अच्छा ग्लाइकोजन कहाँ होता है? ग्लाइकोजन इज बेसिकली वी कैन से ग्लूकोज इज स्टोर्ड, glucose is stored as glycogen पॉलीमर के फॉर्म में, मतलब ग्लूकोज की चेन होती है वो मिलके ग्लाइकोजन बनाएंगे सेम स्टार्च के जैसा, स्टोर्ड इन लिवर, मसल्स, ब्रेन ह्यूमन बीइंग। सो ड्यूरिंग फास्टिंग ना, जब बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है तब वो इन जगह से ग्लाइकोजन को लेके वो ब्रेक करता है, ओके फास्टिंग के टाइम पे। अब इसका अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, इफ यू टॉक अबाउट नॉर्मल स्ट्रक्चर, तो वही सेम स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन, ओके तो ये इसका जो स्ट्रक्चर है इट इज सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन। आपको याद होगा अमाइलोपेक्टिन इज अ ब्रांच पॉलीमर, इसके पास लीनियर पॉलीमर्स होते हैं, अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोस जो C1C4 से अटैच होते हैं और ब्रांच आपस में अटैच होंगे बाय C1C6 से। यू टू रिमेंबर दिस थिंग अबाउट ग्लाइकोजन, ओके गाइस। सो हम लोगों ने पॉलीसेकेराइड में स्टार्च देखा, सेलुलोज देखा, ग्लाइकोजन देखा, डाइसेकेराइड्स पूरे डिस्कस किए। आप उसके यू राइट डाउन एंड ट्राई टू मेक द स्ट्रक्चर, सो ये बहुत थरो हो जाएगा। इसके नेक्स्ट लेक्चर में यू विल स्टडी अबाउट विल कम टू नो अबाउट proteins and nucleic acids. Till then, take care. Bye.